Hey everyone, I'm back with my another video. So in this video, I've been previously talking about कि मैं editorial words के साथ I will come up with this data point paper, news which is there in Hindu. And मुझे ये लगता था कि बहुत ही मतलब एक अच्छा पेज है और बहुत मतलब you must read it मतलब thoroughly इसका reading होना चाहिए. But when I've searched, I could not find it on internet properly, and there is no as such explanation to it also. So I try to do it on my own so that whatever my understanding is, I can tell to other people and share it with them. Might be they will come up with some points that I might have missed it, and we together can work and we can get a subsequent understanding of this particular data point. So let's move ahead when I talk about this particularly first paragraph state of India's formal employment. This data is basically about कि लॉकडाउन जब हुआ था और तब उससे पहले कितना मतलब कौन कौन सी कंपनीज थी कौन कौन से छोटे छोटे शॉप्स थी शॉपकीपर्स का क्या रहा और कितना एम्प्लॉयमेंट बढ़ा कितना मार्केट ग्रो हुआ है या फिर लॉकडाउन से कितना इम्पैक्ट पड़ा है विच आई थिंक इज अ वेरी ऑब्जर्वेबल पॉइंट्स एंड ये पॉइंट्स ना हमें आंसर राइटिंग में बहुत हेल्प करते हैं ठीक है सो लेट मी जस्ट रीड दिस पैराग्राफ क्विकली फॉर यू द पैंडमिक significantly impacted India's formal economy and analysis of data from how India lives shows. The state of the country's formal economy can be assessed to an extent by the number of employees who get employee provident fund contributions from their companies. Both the number of firms and the employee count in the formal economy fell sharply in April 2020 after the national lockdown was announced. As the first wave ebbed, the number of employees returning to the formal fold increased at a healthy pace until the second wave. Since then, the recovery has been slow. However, the recovery was even slower for firms offering formal jobs. While there was a marginal recovery after the first wave, the number of such firms fell sharply following the second wave and since then have not recovered. Among districts, Bangalore added the most formal jobs after the second wave. So basically, they are telling that how many people have joined after the first wave and what the EPF, which is Employee Provident Fund, contributed and how much were they able to. There were people who fetched ऐसा होता है ना कि मेरे पास किसी चीज़ की कमी है और मुझे अपना पीएफ नज़र आया तो मैंने अपना पीएफ निकाल कर उस चीज़ को कमी को पूरा कर लिया और जनरली क्योंकि कोविड टाइम था तो लोगों के पास डेफिनेटली दे वर अनेबल टू गेट द प्रॉपर मनी रिसोर्सेज सो उन लोगों ने ईपीएफ यानी एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड की तरफ देखा तो उसमें से काफ़ी लोगों ने पैसा निकाला एंड देन दे आर टॉकिंग अबाउट कि जितने लोगों ने शार्पली ज्वाइन किया था फर्स्ट वेव के बाद लेकिन सेकेंड वेव के बाद उतना ज्वाइन नहीं करा है रिकवरी जो है वो स्लो रही है जो हम देखते भी हैं लोग बोलते भी हैं कि कोविड 19 के बाद काफ़ी ज़्यादा उनका रिकवरी पेस जो है वो कम हो गया है then there was slow in the offering the formal jobs there is no formal job as such in the industry after the second wave और इन्होंने ये भी बताया है कि बेंगलुरु इज एडेड द मोस्ट फॉर्मल जॉब्स आफ्टर द सेकेंड वेव सो अगर हम कहीं ऐड करना पाए चाहें तो हम इस पॉइंट को भी ऐड कर सकते हैं देन लॉकडाउन इम्पैक्ट सो ये जो ग्राफ आपके सामने दिया हुआ है द चार्ट शोज द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज हुज ईपीएफ contributions were paid by their companies and the number of such companies the number of employees who got their EPF contribution reduced from 46.3 million in January 2019 to 2019 to 44.8 million in September 2021.
Also, the number of firms that could contribute EPF fell from 5.7 lakh to 4.8 lakh in the considered period. Okay, I was wrong. तो पहले ये बताया गया था कि कितना जो एम्प्लॉयर है, क्योंकि क्या होता है जब आप नौकरी करते हो तो उसमें एक एम्प्लॉयर भी कंट्रीब्यूशन करता है। अगर एम्प्लॉय के पार्ट से कटता है तो एम्प्लॉयर के पार्ट से भी कुछ उतना ही पार्ट कटता है। तो उसको किस तरीके से, मतलब लॉकडाउन के टाइम में ये कम देखा गया क्योंकि काफ़ी लोग कम सैलरी दे रहे थे। कुछ लोगों ने काटी है, ठीक है, कुछ एम्प्लॉयर्स में नहीं काटी भी है। लेकिन इसमें ये बताया है इस डेटा में कि जो एम्प्लॉयर्स ने काटी है और उनकी रही है, लेकिन कुछ काफ़ी सारे एम्प्लॉयर्स ऐसे भी थे जिन्होंने काट दी है लेकिन वो वहाँ कंट्रीब्यूशन नहीं हुआ है। सो अगर 2019 में 46.3 मिलियन कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉयर कर रहे थे, जो रिड्यूस हो के 44.8 मिलियन हो गया सितंबर 2021 में। सो एज यू कैन सी, ये जो हमारा ग्राफ है विच इज आप विच इज ऑफ ब्लू लाइन, ये वो कंपनीज हैं जो कंट्रीब्यूशन पे कर रही थी, और 45 जो आ गया ऑलमोस्ट 44.8 जिसको ये बता रहे हैं विच इज इन सितंबर 2021, विच इज फॉलिंग ऑफ अगेन एंड अगेन। तो यहाँ पर है एम्प्लॉयज इन द फॉर्मल इकोनॉमी एंड यहाँ पर पीएफ पेइंग इन फॉर्म्स। तो ये यहाँ पर ये डेटा है जो हमको हेल्प कर सकता है, जहाँ के हम ये बता सकते हैं कि हाउ मच has been the what has been the impact of lockdown. So this can be the first or the second or the third point, and we can show it in a graph that how it has been declining. Then I'm sorry. Change for January 2019, the chart depicts the percentage change in the number of employees and the number of firms in the formal economy compared to January 2019. In September 2021, the number of employees was only 3% lower than in January 2019, whereas the number of firms decreased by 14%. This indicates that many firms which offered formal jobs closed shop during the pandemic and could not recover. While among the employees the declining is lower, a considerable number could still not regain the formal job. So ये देखिए हम चार्ट पे आ जाते हैं फिर से। Change for January 2019, January 2019, April 2020 and September 2021। तो नंबर ऑफ एम्प्लॉयज जो है फॉल हुए एकदम से, क्योंकि वो बंद हो गई शॉप्स, वो फर्म्स बंद हो गए, और इसी तरीके से नंबर ऑफ फर्म्स भी बंद हो गए। सो देखिए 2019 से डेटा कंपैरिजन किया है इन्होंने, और कितना वो मतलब गिरते गिरते इट हैज कम टू दिस पॉइंट कि मतलब माइनस, अगर आप देखें नेगेटिव में जा रहा है, दिस इज नेगेटिव ऑन द लेफ्ट साइड, और कितना फर्म्स इट हैज बीन डिक्लाइनिंग अ लॉट, मतलब माइनस का ये मतलब होगा कि वो डिक्लाइन कर रहा है। तो कितना ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा है 2019 से हमारी इकोनॉमी के ऊपर। देन डिस्ट्रिक्ट वाइज क्या रहा है, द टेबल लिस्ट द 10 डिस्ट्रिक्ट विद द मोस्ट एम्प्लॉयज इन द फॉर्मल इकोनॉमी since the second wave. Between April and August 2021, the Bangalore district added 0.14 million formal jobs, the highest among the district listed. The number of formal workers at the end of each month are listed. तो यहाँ पर हमारे पास ये इन्होंने एक डेटा दिया है हमें, जिसमें they have mentioned 10 districts and who has the most contributed, added the formal jobs is Bangalore. So you can take the example and you can tell कि मुंबई ने इतना किया, Bangalore ने इतना किया, पुणे ने इतना किया, and the one who is contributing a lot is Bangalore. राइट नाउ लेट्स मूव फर्दर। ग्रोइंग मार्केट, सो ग्रोइंग मार्केट में क्या है कि कौन सा मार्केट ग्रो कर रहा है, लेट्स जस्ट हैव अ लुक। द चार्ट प्लॉट्स द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इन द फॉर्मल इकोनॉमी इन अगस्त 2021 against the year on year percent increase in select districts showing the highest growth rate। देखो हम फिर चार्ट पे आ जाते हैं क्योंकि हमें बेसिकली चार्ट से ही मतलब है। तो ये ईयर ऑफ चेंज है, ये ईयर टू ईयर ऑफ चेंज परसेंटेज हमें यहाँ पर दिया हुआ है, और ये एम्प्लॉयज इन अगस्त 2021 विच इज़ इन लैक्स। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर 2020 से 2022 में जो हमारा वो हुआ है, सूरत का हुआ है, देन 16 में जयपुर का हुआ है, देन बेंगलुरु रूरल में इतना परसेंट रहा है, ये हमें परसेंट दिया हुआ है यहाँ पर ना इन्होंने,
और ये हमारा, ये देखिए, ये इफ यू कैन सी दिस इज इन लैख की 4 लाख में ये ग्रोथ रेट इस तरीके से है। एंड देन 4 लाख यहाँ पर था, देन तिरुवल्लम में इतना था, सूरत में हमारा 3.5 था। तो इन लैख में एम्प्लॉयज़ जो है हमारे, ये जो फॉर्मल इकोनॉमी में हमारे आए हैं। सो ये जो हमारे जो टॉप गेनर्स हैं वो है सूरत, वलसाड एंड बैंगलोर। सो इन्होंने they have come they have brought employees in formal jobs, right? So ये हमारे इकोनॉमी को, हम एक बार ही हमारा इकोनॉमी, अगर हम इकोनॉमी के ऊपर कुछ लिख रहे हैं या उसको उससे रिलेटेड भी हमारा कुछ एग्जाम है, तो हम इन ग्राफ्स को बनाएंगे ना, ये बहुत अच्छा एक इम्पैक्ट डालते हैं। सो मैं इस डेटा पॉइंट वाले पेज को ना, मैंने पहले भी बोला था, और मेरा ये फर्स्ट ही वीडियो डाल रही हूँ मैं इससे रिलेटेड। इससे पहले मैं एडिटोरियल्स के ऊपर डाल रही थी, ऑडियो आर्टिकल के ऊपर डाली थी। तो आई थिंक दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द हिंदू एडिटोरियल। एंड आई वॉन्टेड टू टेल यू समथिंग ऑल्सो, मैं भूल गई, अच्छा हुआ मुझे याद आ गया बोलते बोलते, वरना फिर मुझे, मैं दूसरा वीडियो नहीं बनाती इसके लिए। आई हैव स्टार्टेड रीडिंग इंडियन एक्सप्रेस एंड द काइंड ऑफ एडिटोरियल्स इट इज हैविंग यार, जिसे कहते हैं ना, मतलब एकदम आउट ऑफ द वर्ल्ड। मतलब आई वाज रीडिंग द काइंड ऑफ लैंग्वेज, द काइंड ऑफ thought process, the kind of words, so much structured। and अगर मैं monetary basis पे देखूँ, it is also better, like it is 6 rupees costing me and Hindu is costing me 10 rupees। However, I find Indian Express more informative rather than Hindu। हिंदू में ना एड ज्यादा होते हैं, ये मर गया, वो मर गया, यहाँ चोरी हो गई, वहाँ चोरी हो गई। आई एम वेरी मच सरप्राइज टू इवन रीड दिस थिंग ऑन डेली बेसिस इन हिंदू। वाई? बिकॉज दे शुड नो कि हिंदू, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि उन एडिटर्स को पता होना चाहिए कि भाई जो जेंट्री पढ़ रही है हिंदू को, वो मोस्टली वो जेंट्री है जो दे आर अपियरिंग फॉर एग्जाम्स, है ना कुछ एग्जाम के लिए वो अपियर करते हैं, तभी वो पढ़ते हैं, है ना। बहुत ही क्लासिक जेंट्री पढ़ रही है। तो आई डोंट नो, मतलब ऐसा न्यूज़ क्यों, मतलब दिस इज सो मच इरेलीवेंट। और इफ आई लुक एट इंडियन एक्सप्रेस ना, इट इज एक्चुअली में, मतलब मज़ा आ जाता है इंडियन एक्सप्रेस को पढ़ के। और मेरी फर्स्ट प्रेफरेंस इंडियन एक्सप्रेस ही होती है कि मैं अब दो न्यूज़पेपर को रेफर करती हूँ, और मेरी कोशिश सबसे पहले होती है मैं इंडियन एक्सप्रेस के एडिटोरियल्स को पढ़ लूँ। मतलब उसकी एक एक, वन लाइन, ईच लाइन, इफ आई टॉक अबाउट इट, wonderful। And if I talk about the headings, if I talk about the ग्रास्पिक नॉलेज, इफ आई टॉक अबाउट द, इनके बहुत अच्छी बात है कि एडिटोरियल पेज पे ना ये अपना एक थॉट जरूर देते हैं, जो सबसे ऊपर लिखा होता है, जो नेम से होता है वर्ल्डली वाइज। जैसे आज इन्होंने दिया था, द प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस ऑफ द प्रिजर्वेशन of our forest is augmented by their relation to climate, soil and streams, which you can use in your writing। यू नो दिस इज अ वंडरफुल न्यूज़पेपर यार। अगर आप नहीं पढ़ रहे हो ना इंडियन एक्सप्रेस, मेरे कहने पे ना एक बार ही पढ़ लो। और बाई चांस मैंने भी ऐसे ही पढ़ा था, क्योंकि मेरे न्यूज़पेपर वाले भैया ना नहीं देखे गए थे, वो बोल रहे थे कि आज आया नहीं है हिंदू, तो मैंने आपके उसमें इंडियन एक्सप्रेस डाल दिया। मुझे लगा कि आप एग्जाम की तैयारी कर रहे होगे तो आपको इंडियन एक्सप्रेस ठीक लगेगा। भाई मैंने पढ़ा, गाइस, मतलब मैं तो अब दोनों पढ़ती हूँ क्योंकि मुझे डेटा पॉइंट वगैरह कुछ हिंदू में ऐसे पॉइंट्स हैं जो मुझे एडिटोरियल इंडियन एक्सप्रेस में नहीं मिलेंगे। तो भाई मैं तो पढ़ रही हूँ इंडियन एक्सप्रेस को। मतलब थोड़ा टाइम ज़्यादा लग रहा है, लेकिन पढ़ने में जो मज़ा आता है ना, मतलब जो ये एक खुद को ही बूस्ट लगता है यार कि हाँ, मतलब आई एम रीडिंग समथिंग। क्योंकि एक तो मैंने ना, पता है, मतलब मेरा इंग्लिश का बैकग्राउंड है, तो मुझे फाइन रीडिंग, फाइन राइटिंग एंड फिलोसफिकल थॉट्स, गैदरिंग ऑफ थॉट्स, बहुत, मतलब खुद मेरी एक हॉबी है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे लिखना इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। तो आई थिंक ये चीज़ को जस्ट आई वांटेड टू रिकमेंड। और ठीक है, यहाँ पे कोई मेरे को, वो लोग कुछ पे नहीं कर रहे हैं, मैं कोई स्पॉन्सरशिप नहीं है ये कोई एडवर्टीजमेंट नहीं है, मैं खुद अपने उसमें बोल रही हूँ कि यार इंडियन एक्सप्रेस तुम लोगों को जरूर पढ़ना चाहिए, बिकॉज इट इज़ वर्थ इट। यू लव द न्यूज़ पेपर एज सुन एज यू स्टार्ट रीडिंग इट। मैंने एक बार ही पढ़ा था और मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है।
सो यस, सो डेटा पॉइंट हमने पढ़ा आज, और ये मैं डेली इसकी वीडियो डालने वाली हूँ अब, क्योंकि मुझे लगता है ये बहुत इम्पोर्टेंट है इन एवरी पर्सपेक्टिव। हमें पता होना चाहिए हमारा डेटा ना, ये हमें बहुत हेल्प करेगा आगे जाके। So, okay, thank you guys. Please like, share and subscribe and do positive commenting. And मेरे को पहला लाइक आया, मेरे को पहला लाइक आया 13 जैन को, आई गेस, हाँ 13 जैन को मैंने पहला लाइक देखा अपना। एंड थैंक यू सो मच हु सो एवर डिड इट, लव यू सो मच एंड थैंक यू सो मच, बिकॉज यू नो दैट मोटिवेटेड मी। जब मैंने वो एक लाइक देखा ना, मैं कहा बस अब तो मैं बिल्कुल नहीं रोकूंगी वीडियोस बनाना, बिकॉज यू नो आपको एक मोटिवेशन मिलता है डेफिनेटली। जो आप काम कर रहे हो उस पर आपको अच्छा लगता है, एंड एट द सेम टाइम आपके पर्सपेक्टिव को, आपके व्यू को कोई अप्रिशिएट कर रहा है, nothing in the world could make that bliss, you know, could bring that bliss in you. So thank you so much and keep watching. Take care. Bye bye.